So now students, type 1 is over. Now let's move on to type number 2. Type 2 का heading आप लिखो factorization method. Factorization method, ये heading देखो आप. Let us first write down the working rule. ठीक है? Don't worry. First, you just write down the working rule, what I'm giving in writing. Then I'll make you understand when we do the problems. Okay? Working rule में आप लिखो step number 1 factorization method में. Okay? Write down. Whenever we observe, ऐसे लिखो. Whenever we observe problem is of 0 by 0 form. Huh? Just write down, don't worry, I'll explain everything. Whenever we observe the problem is of 0 by 0 form. अब ये जो 0 by 0 form है ना, इसको हम बोलते हैं indeterminate form. ऐसा लिख लो आप. It is called as indeterminate form. So whenever we observe problem is of 0 by 0 form. In limits we call it as indeterminate form. मतलब ऐसा form जिसका लिमिट डिटरमाइन नहीं हो सकता, उसको हम indeterminate form बोलते हैं. ठीक है? So whenever we observe problem is of 0 by 0 form, we factorize numerator or denominator or both. ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म लिखा है. We factorize the numerator or denominator or both as per the requirement. So I repeat, whenever we observe problem is of 0 by 0 form, we factorize the numerator, denominator or both. उसके बाद आप लिखो step number 2, second step. We cancel, factorize करने के बाद फिर second step पे आने का. We cancel the common factor. We cancel the common factor from numerator and the denominator. ठीक है ना, we cancel the common factor from the numerator and denominator. Okay, ये step number 2 हो गया. Step number 3 लिखो. Step number 3. Substitute the value of x. Substitute the value of x and evaluate the limit. Substitute the value of x and evaluate the limit. ठीक है, ये 3 स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं. अगर प्रॉब्लम 0 by 0 फॉर्म का है तो फर्स्ट थिंग इज वी नीड टू फैक्टराइज एज पर द रिक्वायरमेंट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और बोथ. फैक्टराइज मींस यू नो इट विल बी अ पॉलिनोमियल, जैसे प्रीवियस एग्जांपल में किया. ठीक है, पर वो 0 by 0 फॉर्म नहीं था. ठीक है ना, डायरेक्ट मेथड इट वाज. यहाँ पे 0 by 0 फॉर्म रहेगा. तो फैक्टराइजिंग मींस व्हाट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, वी नीड टू फैक्टराइज देम. तो फैक्टराइज करने के बाद देन विल कैंसिल द कॉमन फैक्टर. फिर कॉमन फैक्टर कैंसिल हो गया, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूट करने के x के वैल्यूज को. ठीक है, नाउ एज आई सेड वी आर डूइंग टाइप वाइज. So let's move on to the problems. Now they are non-textual examples.
I am doing it from the notes. Actually, previously limits and continuity, हाँ, ये 12th स्टैंडर्ड में था, अभी 12 से 11 में आ गया है. तो दिस विल बी डूइंग इट फ्रॉम आवर नोट्स, जो 12th स्टैंडर्ड के अपने नोट्स है पार्ट कोर्स के, विल बी डूइंग इट फ्रॉम देयर इटसेल्फ. ओके, ये सारे क्वेश्चन हम वहां से करेंगे. तो लेट्स फॉलो दिस रूल. इनडिटरमिनेट फॉर्म के बारे में हम प्रॉब्लम में डिस्कस करेंगे. ओके, हैव यू रिटन द वर्किंग रूल? शैल आई रब दिस ऑफ एवरीवन? तो प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन. फैक्टराइजेशन मेथड में आप लिखो evaluate the following and this is the first example. Don't worry, textbook के examples आप खुद कर सकते हो. They are all non-textual. They are from our notes we are doing. Okay, so this is to be evaluated. चलो लिखो solution for this problem. Okay, write down along with me. लिखो let L equal to, same thing as we did it in the previous problem. L is equal to, write down limit x is tending towards 5. This is the given question. Students, please note down. Okay, now just pay attention for less than 1 minute. Now the previous example that we did, that was direct method. Now please check in this limit x is tending towards 5. Now what we have done in the previous problem कि limit numerator and denominator को हमने split किया था और फिर value डाला and we have got the answer directly, you know. अच्छा, वहां पे limit split किया था. अगर यहाँ पे limit split नहीं करना है, why it is not to be done? Just have a look. Because now suppose let us put x is equal to 5 in the denominator, है ना, ये fx upon gx है, तो x का वैल्यू 5 डालते हैं orally. तो 5 square 25, 25 plus 5 30, 6 5s are 30 plus 30 minus 30, denominator becoming 0. Let's check about the numerator. x का वैल्यू 5 डालो, 25 plus 20, 45 minus 45, numerator also becoming 0. तो ये जो प्रॉब्लम है, this is 0 by 0 form. और अभी मैंने आपको लिख के दिया, दिस फॉर्म इज कॉल्ड एज इनडिटरमिनेट फॉर्म. इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं हम इसको. मतलब ऐसा फॉर्म जिसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते. अच्छा, इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसका ये मतलब नहीं है कि लिमिट का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा. प्रॉब्लम सॉल्व होगा, पर उसमें हमें फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना पड़ेगा. So whenever you are doing any problem in the limit, first you check the form. अगर 0 by 0 फॉर्म है तो आप प्रॉब्लम में x का वैल्यू 5 डाल के 0 नहीं लिख सकते. 0 upon 0 does not mean that the answer is equal to 0. ये सॉल्व नहीं हो सकता. प्रीवियस एग्जांपल आप देखोगे तो वहां पे डिनोमिनेटर भी 0 नहीं था, न्यूमरेटर भी 0 नहीं था, तो वहां पे अपने को सीधा सीधा आंसर मिला था. तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा. Now what we'll do, check numerator is a polynomial. ये quadratic equation है. Numerator as well as denominator को हमें क्या करना है students? We have to factorize them. Okay, तो चलो write down. ये आप लिखो 0 by 0 form है, ऐसा सामने लिखो आप. First few examples you write down this for your reference. ये ऐसा 0 by 0 form है, आपको एग्जाम में नहीं लिखना है. This is for your reference. Now the method says problem तो solve होगा, पर हमें factorize करना पड़ेगा. तो चलो let's consider the numerator. Write down, consider, write down the quadratic equation which is present in the numerator. Okay, और जल्दी से आप इस quadratic equation को factorize करो and tell me the factors of this equation. चलो ठीक है, एक आपको मैं करके बता देता हूँ. फर्स्ट एग्जाम्पल है, तो एक मैं आपको करके बता देता हूँ, सेकंड का आप बताना मेरे को. ओके, चलो लेट्स डू इट टुगेदर. नाउ वी आर गोइंग टू फैक्टराइज बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. ठीक है, तो एक्स स्क्वायर रिमेनिंग सेम. चलो इतना बताओ, हाउ विल यू राइट डाउन -9x एज -5x and -4x. करेक्ट, वेरी गुड, एब्सोल्युटली. -5x -4x plus 20 is going to remain same. मिडल टर्म को यू स्प्लिट इन सच अ वे कि जब मैं ये दोनों को ऐड करूंगा मेरे को 9x मिलेगा,
और ये दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो इट शुड बी द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म. वेरी बेसिक थिंग है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. नाउ फ्रॉम दीज टू टर्म्स एक बार x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x -5 बचेगा. ये दोनों टर्म्स में से हम -4 कॉमन ले लेंगे. Then also will be left out with x -5. Now from both the terms I will be taking x -5 common. तो x -4 बचेगा. तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स क्या है? x square minus 9x plus 20 के फैक्टर्स is nothing but x -5 into x -4. तो न्यूमरेटर के फैक्टर्स आर दिस. Okay, so I hope no one should have any difficulty in this. ठीक है, चलो now let's do it for the denominator. जो सिंपल पार्ट है उसमें हम फटाफट करेंगे. So let's consider the denominator and let's find out its factor also. तो लिखो consider, write down this equation x square minus 6x plus 5. अभी आप मेरे को आप बताओगे क्या फैक्टर्स है इसके. Okay, I give you a time of 30 seconds. Okay, waiting Done, for sir. your response. Done? Okay. Very Done, good. Done? Okay. Can anyone tell me the factors of this? -5. X minus 5 and x. X -5. Yes, exactly. It's x minus 5 and x minus 1 आएगा. ठीक है ना? Now when I say tell me the factors, तो खाली आपको मेरे को ये बताना है दोनों ब्रैकेट में क्या आएगा. That is what we do. Okay? तो एक मैंने करके बता दिया, एक आपने किया. तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो फैक्टर्स मिले ना हमें, that we will be replacing in the question. क्यों? 0/0 फॉर्म है तो लिमिट तो हम स्प्लिट नहीं कर सकते. We can't apply the rule fx upon gx. I have given to you rule में denominator should be non-zero. तो denominator तो zero हो रहा है तो root is over here. तो लिखो next step. Therefore L is equal to, L stands for the notation of limit, students. L is equal to limit x is tending towards 5. ठीक है ना? ये न्यूमरेटर के फैक्टर्स है. So what are the factors of the numerator? X minus 5 into x minus 4 upon denominator के क्या फैक्टर्स है? x minus 5 into x minus 1. Close the bracket. ठीक है, we have replaced by their factors. उसके फैक्टर्स से हमने रिप्लेस किया स्टूडेंट्स. Now what does step number 2 says? Step number 1 बोलता है 0/0 फॉर्म है तो आप फैक्टराइज करो. स्टेप 1 हमारा हो गया. Now step 2 says what? Cancel the common factor. तो क्लियरली विजिबल ये x minus 5 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा. अच्छा, ये जो कॉमन फैक्टर है ना, ये कैंसिल होने का एक रीजन है. राइट डाउन दैट रीजन. आई राइट इट डाउन फॉर योर रेफरेंस. आप लिखो ऐसा. ओके, नाउ बट बिफोर दैट, नाउ जस्ट गिव मी द क्लियरेंस. हैज एवरीवन डन इट टिल हियर? यहां तक समझ में आ गया आपको? Yes, sir. ओके फाइन. चलो, नाउ देयर इज अ रीजन. ये x minus 5 क्यों कैंसिल किया हमने, उसका रीजन है. लिखो एज x is tending towards 5. As x is tending towards 5, therefore x will never equal 5. है ना? x tending towards a, definition क्या बोलता है? When I say x is tending towards a means x is going closer and closer towards a. x will never become equal to a. Definition में दिया, देखो लिख के आपको नोटबुक में देख लो. तो when I am saying x is tending towards 5, मतलब x का वैल्यू 5 के पास में जाएगा, कभी भी इक्वल टू 5 नहीं होगा. तो ऑब्वियसली when x is not equal to 5, तो x minus 5 will never become 0. ये जो वैल्यू है ना x minus 5 कभी भी 0 नहीं होगा. तो इसीलिए तो फैक्टर कैंसिल हुआ ना. 0/0 फॉर्म, अपना जो फॉर्म है वो x minus 5 तकलीफ दे रहा था. What was troubling us was this common factor x minus 5. वो हमने कैंसिल कर दिया. क्यों कैंसिल कर दिया? Because x minus 5 is not equal to 0. Am I clear about this reason also, everyone? Yes, sir. Okay.
वेरी गुड. नाउ लेट्स राइट डाउन व्हाट इज लेफ्ट आउट. अभी फर्स्ट एग्जांपल है तो मैं सब स्टेप वाइज कर रहा हूँ आपके लिए. देयरफॉर L is equal to limit x is tending towards 5. Now let us write down what is left out. क्या बच गया? X minus 4 upon x minus 1 remains. Okay, please write down this. Now observe this. Now if you see whatever is left out, इसमें जब हम x का वैल्यू 5 डालेंगे, okay, I'll go to this side. इसमें जब हम x का वैल्यू 5 डालेंगे तो आप देखो डिनोमिनेटर 0 हो रहा है क्या? नो, इट्स नॉट बिकमिंग 0. डिनोमिनेटर इज नॉट बिकमिंग 0. तो ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर डिनोमिनेटर इज नॉट बिकमिंग 0 आप x का वैल्यू डाल दो. ठीक है ना? तो राइट ऑन देयरफॉर कैपिटल L इज इक्वल टू. अच्छा, अभी लिमिट स्प्लिट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. डायरेक्टली पुट x इज इक्वल टू 5. You need not to show by splitting up the limit. Not required. फर्स्ट एग्जांपल था इसलिए पहले करके बता दिया टाइप 1 में. x का वैल्यू 5 डालो तो 5 माइनस 4, चलो आपके रेफरेंस के लिए वो भी लिख देता हूं मैं. 5 माइनस 4 अपॉन 5 माइनस 1 आएगा x के जगह पे 5 डालने का. दैट इज व्हाट द रूल सेज. तो आंसर इज 1/4. प्रॉब्लम इज ओवर. देखो तो जो लिमिट का वैल्यू है दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 1/4. We have evaluated the limit. Please check. तो what is the conclusion? Check. 0/0 फॉर्म था. वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ. 0/0 फॉर्म है. सारे प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट यही फॉर्म के होते हैं. तो इस फॉर्म में आप वैल्यू नहीं डालोगे. राइट नाउ वी आर सपोज टू फैक्टराइज. फैक्टर्स फाइंड कर लिए, इसके जगह पे फैक्टर्स डाल दिए. We have cancelled the common factor. जो बच गया उसमें वापस चेक करने का 0/0 तो नहीं आ रहा है तो ओरली डाल के देख लेने का. हाँ चलो 0/0 नहीं आ रहा है, डिनोमिनेटर नॉन जीरो है, वैल्यू डालो, गेट द आंसर. ओके, तो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, व्हेनेवर डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो सब्स्टिट्यूट एंड इवैल्यूएट. लिख लो ऐसा नोट. राइट डाउन नोट फॉर योर रेफरेंस. नोट लिख लो, ऐसा लिखो आप. Now I'll just dictate. I'm not writing it down. No? Note लिखो आप after the problem. Excuse me. In limits ऐसा लिखो. In limits, if we observe, in limits, if we observe denominator is non-zero. If we observe the denominator is non-zero, then substitute the value of limit and evaluate. Then substitute the value of limit and evaluate. ठीक है, दिस इज व्हाट इज टू बी डन. तो हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है तो हमने वैल्यू डाल दिया और आंसर आ गया. हाँ, न्यूमरेटर 0 हो सकता है. न्यूमरेटर मे बी 0. डिनोमिनेटर शुड बी ऑलवेज नॉन जीरो. ठीक है, तो इफ एनी डाउट यू कैन आस्क, अदरवाइज लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड एग्जांपल व्हिच इज अगेन बेस्ड ऑन फैक्टराइजेशन. Okay, chalo write down solution for the problem. Let L equal to, write down limit x is tending towards √2 x square plus √2x minus 4 upon x square minus 3√2x plus 4. Okay. Now let us first check, is it a 0/0 form? पहले चेक कर लेते हैं. ठीक है ना. अच्छा, तो x का वैल्यू we have to put it orally. एक्चुअली सब्स्टिट्यूट नहीं करना है. तो x का वैल्यू √2. √2 का स्क्वायर इज 2. 2 plus 4 is 6. 3√2 into √2 is 6. तो plus 6 minus 6, yes, denominator is becoming 0. √2 का स्क्वायर इज 2. 2 plus 2 4. 4 minus 4, yes, numerator also becoming 0. So yes, this is 0/0 form.
इनडिटर्मिनेट फॉर्म है तो x का वैल्यू डाल नहीं सकते, वी कैन सब्स्टिट्यूट x एज √2 एंड सॉल्व होगा ही नहीं. नाउ वी आर सपोज टू फैक्टराइज दीज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. तो लिखो कंसिडर. Okay, the numerator is x square plus √2x minus 4. Okay, now can anyone tell me how will we split this √2x as? कैसे लिखोगे आप इस √2x को? मिडिल टर्म प्लस 2√2 प्लस √2x को कैसे लिखोगे आप? Plus Anyone? 2√2x and minus √2x. Correct, absolutely, very good Keshav, perfect. हाँ तो चलो करो. x square plus this will be written as 2√2x minus √2x will remain same. ठीक है, मतलब वो आएगा माइनस √2x आएगा एंड माइनस 4 विल रिमेन सेम, ऐसा हो जाएगा ये. ठीक है ना, ये इसके फैक्टर्स. मिडिल टर्म ऐसा स्प्लिट होगा, फैक्टर्स बाकी है, फैक्टर्स टू बी फाउंड आउट. चलो नाउ एज यू कैन सी फ्रॉम द फर्स्ट टू टर्म्स, दो एक एग्जांपल के लिए मैं करके बताऊंगा, बाकी आपको करना है. फ्रॉम द फर्स्ट टू टर्म्स विल बी टेकिंग x कॉमन, तो x प्लस 2√2 रिमेन्स. नेक्स्ट टू टर्म्स में से माइनस √2 कॉमन, तो x प्लस 2√2 रिमेन्स. बेसिक अंडरस्टैंडिंग यू शुड हैव ऑफ फैक्टराइजेशन, नहीं तो ये नहीं समझेगा. So now this is x minus √2 into x plus 2√2 are the factors for this quadratic equation. ये न्यूमरेटर के फैक्टर्स है. चलो now you find out the factors for the denominator. डिनोमिनेटर के फैक्टर्स आप निकालो. Consider the denominator quadratic equation. Find the factors and please let me know. It's x square minus 3√2x plus 4. हाँ तो मैं दो ब्रैकेट्स डाल रहा हूँ, आप इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में क्या आएगा वो मेरे को बताना. Come on, is it done? Check. Okay, I'll write down the factors. If someone can tell me. Anyone has got? चलो ठीक है, इसके फैक्टर्स देखो. एक ब्रैकेट में आएगा x माइनस 2√2 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा x माइनस √2. चेक. वन ऑफ द ब्रैकेट, ये x माइनस √2 इधर लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है आंसर पे. x minus 2√2 and x minus √2. Check. Have you got these factors? Everyone? Yes, sir. Okay. ठीक है, तो चलो फैक्टराइज हो गया. अब लेट्स रिप्लेस देम इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. तो लिखो therefore नेक्स्ट स्टेप. तो therefore L is equal to limit x is tending towards √2. ठीक है, न्यूमरेटर के फैक्टर्स क्या है लिखो आप. तो इट्स x माइनस √2 इंटू x प्लस 2√2 और डिनोमिनेटर के फैक्टर्स क्या है, इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं. इट्स x माइनस √2 इंटू x माइनस 2√2 है. ये डिनोमिनेटर के फैक्टर्स है. नाउ वी कैंसिल द कॉमन फैक्टर. ठीक है, चेक. वी हैव रिप्लेस्ड बाय द फैक्टर्स. नाउ लेट्स कैंसिल द कॉमन फैक्टर. तो ये x माइनस √2 इसके साथ कैंसिल हो गया. क्या रीजन है कैंसिल होने का, तो वो लिख लेते हैं. एज x is tending towards √2, therefore x is not equal to √2 and therefore x minus √2 is not equal to 0. नॉन जीरो फैक्टर कट हो गया. अब जो बच गया वो लिखो आप इनिशियली. तो L is equal to limit x is tending towards √2. What we are left out with, students?
we are left out with x plus 2 root 2 upon x minus 2 root 2 remains. Okay, now check and tell me, will the denominator become 0? अगर मैं x का वैल्यू रूट 2 डालूं तो डिनोमिनेटर 0 होगा क्या? No. नो, एब्सोल्युटली करेक्ट. तो जब मैं x का वैल्यू रूट 2 डालूंगा तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होने वाला है. तो अब मालूम पड़ गया कि जब डिनोमिनेटर 0 नहीं होने वाला है तो वैल्यू डालो और खत्म करो प्रॉब्लम को. राइट ऑन. देयरफॉर L इज इक्वल टू x के जगह पे रूट 2 डालो. अच्छा, अभी हर एक स्टेप लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है. रूट 2 प्लस 2 रूट 2 इज 3 रूट 2 अपॉन रूट 2 माइनस 2 रूट 2 इज नेगेटिव रूट 2. नो वन विल आस्क यू ये कैसे आया. हाँ? वो तो आएगा ही. तो रूट टू कैंसिल हो गया. वैल्यू ऑफ द लिमिट इज -3. प्रॉब्लम इज ओवर. तो फैक्टराइजेशन मेथड के जो प्रॉब्लम्स है एकदम सिंपल है. 0/0 फॉर्म वाला प्रॉब्लम रहेगा ऑलवेज. ऑलवेज 0/0 वाला. फैक्टराइज करो, सॉल्व करो, फैक्टर्स को कैंसिल करो, लिमिट डालो, वैल्यू निकालो. प्रॉब्लम इज ओवर. Check. If any doubt or confusion, you can ask.